Good morning, 8th class. Hope you all are fine. Our today's lecture is lecture number 31, that is Essay My House. In the last 2 days, you have also attempted the Essay My House. I have provided you the essay on Monday, right? And you were asked to learn and write the essay on your grammar notebooks. Then last day, you have been given the first 3 paragraphs of the essay to learn. Now today, you are going to learn the whole essay. फुल एसे माई हाउस, इसको आप अच्छे से याद करेंगे बिकॉज दीज एसेज आर इंक्लूडेड इन योर टेस्ट ऑल्सो. तो इसको आप अच्छे तरीके से वीकेंड पे याद करें. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सरसाइजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, present indefinite, past indefinite and future indefinite, so that you may be able to attempt the translation in the test, right? So we are going to start with present indefinite today. As you are going to translate the Urdu sentences into English, so first of all you must recognize the Urdu sentence कि कौन सा जो sentence है उर्दू का वो present indefinite का sentence है. Like उर्दू जुमले के आखिर पर अगर आप उर्दू के sentences आपको पेपर में आते हैं तो उनमें से कौन सा जुमला जो है या sentence जो है वो present indefinite का होगा जिसके आखिर पर या जो जुमला जो है वो ता है, ती है, ते हैं पर ख़त्म होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह सवेरे उठता हूँ तो ता हूँ, राइट. ता हूँ सजेस्ट दैट दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट. द मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग दिस you are already well aware of it. You have attempted the tenses there in your class 7th. It was the conversion, but now it's translation. So you are going to follow the method, that is subject plus verb plus object. This is the formation of an English sentence. For example, in this Urdu sentence, मैं is subject, उठता हूँ is verb. This is subject. उठता हूँ verb. कब उठता हूँ? सुबह सवेरे उठता हूँ, तो this is object. So when you arrange it, subject, verb and object. As this is present indefinite, which form of verb you are going to use in for present indefinite tense? Subject, verb, first form of the verb. You are going to use first form of the verb plus s or es. You are going to add s or es with the first form of verb and then object. Let's translate. Subject is I, मैं क्या करता हूँ? उठता हूँ. So the action or the verb is get up, right? और कब उठता हूँ? सुबह सवेरे, early in the morning. So I get up early in the morning. But here I have told you to add s or es. I haven't add s or es with get up. It's not gets up. Why? Because of the subject, because of this pronoun. Right? When you have first person pronouns, second person pronoun and in third person pronoun they, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई एंड वी जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं. यू इज़ द सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो किसी सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. दे इज़ द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, राइट. दिस इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. You is the second person pronoun and they is the third person pronoun, right, except plural subjects. ठीक है जी. plural subjects के अलावा बाकी ये जो तमाम हमारे पास pronouns हैं इनके साथ हम verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं लेकिन इनके साथ हम s या es यूज़ नहीं करते. तो मैंने यहाँ इसके साथ s या es नहीं लगाया बिकॉज आई के साथ जब हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो एस या ई एस नहीं लगाते. इज़ दैट क्लियर, राइट. लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये तमाम के तमाम जो हैं ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. तो जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या एस भी लगाते हैं, राइट. यहाँ पर है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर हमने किसी तीसरे की बात करनी हो लाइक ही तो फिर यहाँ हमारे पास होगा गेट्स अप.
he gets up early in the morning. Hope this is clear to you. Now when you are going to make the negative sentence of it, अब आपने इसका negative sentence बनाना है या आपने इसका interrogative sentence बनाना है, तो हम क्या करेंगे, right? With he, she, it और singular subjects जिसके साथ आप verb की form के साथ s या es ऐड करेंगे, उसके साथ आपने negative बनाते हुए जो helping verb लगाना है that is does not. जब आप does not लगा देंगे तो फिर s या es जो है वो यूज़ नहीं होगा, राइट? He gets up early in the morning. He does not get up early in the morning. He does not get up early in the morning. और इंट्रोगेटिव बनाना है तो does को आप शुरू में ले आएंगे. Does he get up early in the morning? क्लियर? सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐसे ही येस लगाएंगे विद दीज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. क्लियर? जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डज़ नॉट के साथ आप ऐसे ही येस नहीं लगाएंगे. जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप डज़ को शुरू में ले आएंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले, एंड यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क एट दी एंड. नाउ कम्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स, जिनमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ नहीं करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यू विल यूज़ डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. So hope the method and the formation is clear to you. Now I will provide you the translation of all the 3 or 4 exercises of present indefinite. इनकी आप vocabulary देखें, इनके आप sentences की practice करें, right, ताकि आप पेपर में इसको attempt कर सकें. Take care.